A popular Christian author said, एक जाने माने क्रिस्ती लेखक ने कहा, be still and be strong. रुके रहो, बने रहो और मजबूत बनकर आ My जाओ। brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, if anyone masters the art of being still in the presence of अगर God, आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की कला में निपुण हो जाते हैं, they invariably experience strength from the Most High. तो निसंदेह ही निश्चित ही परमेश्वर से बल प्राप्त करेंगे। Isaiah 40 verse 31 said, यशायाह के 40 और 31वें वाक्य में लिखा हुआ है but those who wait upon the Lord कि वे लोग जो यहोवा की बात को जोड़ते हैं, shall renew their वो strength. नया बल प्राप्त करते जाएंगे। This morning I want us to ponder upon the first portion of Isaiah 40:31. और इस सवेरे के वक्त जो है हम चाहते हैं यशायाह के 40 और 31वें वाक्य के पहले भाग को हम ध्यान दें। I believe that we all are aware that we are on a series and we call it as lessons on waiting upon the Lord. मेरा विश्वास है हम सभी जानते हैं कि हम श्रृंखला में हैं और इसका शीर्षक है परमेश्वर पर रुके रहना, निर्भर रहना की सीख। The word wait that is mentioned here, और यहाँ पे जो शब्द का उल्लेख रुकना का उल्लेख किया गया है, it denotes the idea of hoping for and looking unto somebody. इसका मतलब ये है कि आप आशा रखे हुए हैं और आप जो है किसी की ओर देख रहे हैं। It is to say that I am done and I cannot do anything and I am looking unto you to do everything. ये मानो इस तरह से है कि मैं जो है कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कर चुका हूँ, अब जो है मैं सारी बातों के लिए आपकी ओर देख रहा हूँ। To put it in simple words, और साधारण से सामान्य शब्दों में अगर बोलना हो it's तो the end of yourself कि आप अपने आप में कुछ नहीं करना and चाहते हैं beginning of the one whom that you trust. और जिस पर भरोसा करते हैं उनको काम करने देते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, if you do that, अगर हम ऐसा करते हैं, the word of God further says, वचन में आगे लिखा हुआ they है shall be renewed with new strength. कि उनका नव निर्माण होगा और वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। The word renew means और नव निर्माण या नया होना just like the grass. एक घास के समान। You know how it just sprouts out. घास कैसे जो है उगता है, As the sun breaks out in the morning, जैसे सूरज जो है उगता है you know the grass breaks out. और ये घास भी उगते हैं Nobody can stop the growing, sprouting grass. और कोई भी उसको रोक नहीं सकता बढ़ने से। That is renewing. और ये नवीन होना या तरोताजा होना, This green grass does not remain green. ये हरा घास है, वो हरा नहीं रहता है, It will turn to brown वो जाकर ब्राउन हो जाता and है it will go off. और वो मर जाता है। And next day, once again, it comes up. मानो मर गया है लेकिन दूसरे दिन पुनः जो है दिखाई पड़ता है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, that is what is called as renewing. इसको जो है नव निर्माण होना या तरोताजा होना बोलते हैं। How often do we sing that particular song? कितनी बारी हम इस गीत को गाते हैं, Great is thy faithfulness. कि आपकी विश्वास योग्यता महान है, Great is thy आपकी विश्वास faithfulness. योग्यता महान है। Morning by morning, new mercies I see. सवेरे दर सवेरे मैं तेरी दया को देखता हूँ। My brothers and my sisters, it's all about waiting and receiving new strength every single morning to face our battles. और देखिए ये ऐसा है कि हर सवेरे के वक्त जो है हम बने रहते हैं, हम रुके रहते हैं ताकि हम नया बल को प्राप्त करें और हमारे जो सामने जो युद्ध है उस युद्ध का सामना हम करें। This cannot be explained with a better example than the example of King David himself. और यहाँ पे देखिए हम सबसे उत्तम उदाहरण को देख सकते हैं राजा दाविद। I want us to open our Bibles to Psalm 62. हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, भजन संहिता 62, We're going to look at from verse 1 to verse 5. 62 और पहले वाक्य से 5वें वाक्य तक देखेंगे। I'm reading for you from the New King James Version. न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ा जा रहा It है। says, truly my soul silently waits for God. From him comes my salvation. Verse 2, he only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Verse 3, how long will you attack a man? You shall be slain, all of you, like a leaning wall and a tottering fence. Verse 4, they only consult to cast him down from his high position. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. Verse 5 and the final, my soul waits silently for God alone, for my expectation is from him. सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है।
सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष का धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, I want us to understand the story of David. दाविद की कहानी को समझ लीजिएगा। David was in deep trouble. और दाविद जो है गहरी समस्या में था। And the problem was this, that the king of the land of Israel was chasing after him. और समस्या ये थी कि इजराइल देश का राजा जो है उसके पीछे वो लिया था। The entire armies of Israel were looking to destroy him. इजराइल की पूरी सेना जो है उसका नाश करने पर थे। He couldn't have gone out and hid himself in any town, in any city. किसी शहर और किसी गांव में जो है वो चुप नहीं सकता था। The entire land of Israel was against him और पूरा इजराइल देश उसके विरुद्ध में था, because they were fearful of the king Saul. क्योंकि वो साउल राजा का भय मानते थे। And King Saul was going after David with all that he had, और राजा साउल जो है वो दाविद के साथ दाविद के पीछे जा रहा था, because he thought that he is protecting himself and the generations that come of him from David. और क्योंकि वो ऐसा सोचता था शाऊल राजा कि वो अपने आप को सुरक्षित रख रहा है और जो उससे जो वंश है उस वंश को सुरक्षित रख रहा है। He saw him as an internal enemy ready to destroy him and the generation that come of him. और शाऊल ने देखा और ऐसा सोचा कि दाविद जो है उसका दुश्मन है और उसके आने वाली पीढ़ी का दुश्मन है। An insecure man can put you into deep trouble. एक व्यक्ति जो इनसिक्योर रहता है, जो असुरक्षित महसूस करता है, वो आपको संकट में समस्या में डाल देता That was the problem of David here. दाविद की समस्या देखिए ये थी। Saul was insecure. शाऊल जो है वो असुरक्षित महसूस कर No रहे थे। amount of convincing him that he doesn't mean anything wrong could not convince Saul. और कोई भी कुछ भी बोले कि दाविद जो है कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन शाऊल जो है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। He was chasing after him. वो दाविद के पीछे हो लिए थे। There was no cave where David did not और hide. देखिए ऐसा कोई गुफा नहीं था जहां दाविद छिपे नहीं थे। There was no forest, there was no field where David did not ऐसा hide. कोई जंगल नहीं था, ऐसा कोई खेत नहीं था जहां पे दाविद छिपे नहीं थे। So much so, इतना ज्यादा David had to go and take shelter under Philistines. कि दाविद को जो है फिलिस्तियों के पास जाकर वहां पे जो है आसरा लेना पड़ा। There came a particular time David was even ready to fight the armies of Israel because that he was serving the Philistine kings. और एक ऐसा समय भी आया कि इजराइल जो है फिलिस्तियों के साथ मिलकर जो है इजराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो फिलिस्ती राजा की सेवा कर रहा था। David did not do anything, did not wanted to do anything in his own और strength, अपने बल से वो कुछ नहीं करना चाहता था दाविद, because he acknowledged क्योंकि उसने इस बात को माना in his own strength that he is a weak man. कि अपने खुद के बल में वो बहुत दुर्बल है, He was a feeble man. वो बहुत ही दुर्बल है, He was unable. वो कर नहीं सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Because he acknowledged that. क्योंकि उसने उस बात को मान लिया And the only option that was left was to wait upon the और Lord. सिर्फ यही बात रह गई थी कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, रुके रहना। And that is how that David cries out here in this place. और यहाँ पे देखिए दाविद यही बात को लेकर परमेश्वर की ओर दुहाई दे रहे हैं। You know, in the King James Version he says, my soul waiteth upon the Lord. लिखा हुआ है कि मेरा प्राण जो है वो परमेश्वर पर निर्भर है, रुका हुआ है। The word waited that is mentioned in this particular place is dumia. और जो शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है वो दुमिया है। That means damia. इसका दमिया ये शब्द है। It could be called as dumb. दम्भ इसको बोल सकते हैं। That means to say subject to. इसका मतलब है कि आप अधीन में आते हैं। Means to say that I am silently sitting. इसका मतलब है कि मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। That means to say in all quietness I am sitting. बिना कोई आवाज किए मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। Or it means to say I'm just resting and keep on looking unto the Lord. या फिर ये भी इसका मतलब निकलता है कि मैं आप में विश्राम कर रहा हूँ और आपकी ओर देख रहा हूँ। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, is your soul subject to God? क्या आपका प्राण जो है परमेश्वर के अधीन में है? Are you dumb? क्या आप जो है परमेश्वर पर निर्भर है? Dumb means to sit in stillness. दम का मतलब है कि आप जो है चुप्पी में बैठे रहते हैं। It means
to sit in silence, इसका मतलब है कि आप चुपचाप बैठे रहते हैं, in quietness and resting upon Him. आप जो है शांति बनाए रखते हैं और उन पर निर्भर होकर वहां पे रुके हुए हैं चुपचाप। If you are that, अगर आप ऐसे जन हैं, listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, If you are that, अगर आप ऐसे जन हैं, the Lord and His Word promises a renewal of strength every single morning. परमेश्वर और उनका विश्वास जो है हमसे वादा करता है कि हर सवेरे के वक्त जो है हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। As He renews His mercies unto you, और जैसे उनकी दया जो है हर सवेरे के वक्त नया रहता है, नहीं रहती है, so also His strength renews every single और morning. वैसे ही उनका बल जो है हर सवेरे के वक्त नया रहता है। You and I don't have to fret and fear. हमको जो है डरने की जरूरत नहीं है, No amount of insecure people cannot do anything against us. और हमारे विरुद्ध में जो असुरक्षित लोग हैं, अपने आप में महसूस करते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Especially the Lord spoke to me and said this morning, और विशेष रूप से परमेश्वर ने मुझसे बातें की सवेरे के वक्त, और there are कहा, some people who say, they stretch forth their hand and say, I bless you, it's good with you, it's well with you. और कुछ लोग जो है आपके प्रति हाथ को बढ़ाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं सब अच्छा है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, But inwardly they are cursing you. लेकिन अंदर ही अंदर जो है आपको वो कोस रहे हैं। Against such ones you don't have to fret or fear. और आपको उनको लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं The है। Lord is your defense. परमेश्वर जो है आपकी ओर से The है, Lord is your salvation. वो आपकी सुरक्षा है, वो आपका उद्धार है। You shall not be greatly moved. और देखिए आपको हिलाया नहीं जा सकता है। Go with this great assurance this और morning. इस विश्वास के साथ इस सवेरे के वक्त जाइएगा, Rejoice in Him. उनमें आप आनंद मनाइएगा, For He is a good God, क्योंकि वो भले हैं a praiseworthy God, और स्तुति के योग्य है, a God who believes in keeping His covenant. और जो परमेश्वर अपने वाचा को बनाए रखते हैं। You are His covenanted child. आप उनके वाचा में बंधे हुए बच्चे हो। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। You have a fabulous day. आपका दिन बहुत अच्छा जाए।